So let's start lecture number 5 on electric flux and Gauss law. So आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज़ मोर और लेस रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉन्सेप्ट. सो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑलरेडी कैलकुलेट किया था एंड वी हैव सीन कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द इंटीग्रेशन. But in this concepts, in the concept of solid angle, we'll find out the electric flux without using the integration. There's an easy way using the method of solid angle. We can calculate the electric flux through some area. So basically electric flux हमने देखा था it is the number of lines crossing through a area and that area needs to be perpendicular to the motion of through the direction of lines. ठीक है. So for instance हमारा जो solid angle का concept है ना हमारा, तो वो basically हमारा point sources के लिए बड़ा यूज़ होता है कि point source में भी और light source में भी और sound source. ठीक है, क्योंकि वो spread over होता है radially. जहाँ पे भी spread over radial होगा ना, in that case solid angle concepts काफ़ी helpful रहता है to find out the flux, the intensity or the power at that particular point. So ऐसे ही हमारा जो हम for instance अगर हम cases देखें solid angle का concept हमारा यहाँ पे use होगा if we have a suppose there is a positive charge. So positive charge क्या करता है, it is radiating out the electric field ना, it is radiating out the electric field in all direction. ठीक है. Now if you have to find out because it is radiating out, और अगर मैं इसके सामने कोई flat surface ऐसे रख दूँ, ठीक है, तो obviously at each and every point there is a different electric field इंटेंसिटी. ठीक है, एट ईच एंड एवरी पॉइंट देयर इज अ डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो सॉलिड एक तरीका होता है हमारा टू फाइंड आउट द फ्लक्स शोइंग गोइंग थ्रू दिस cube is to do it with the integration method. Another way is to do it with the solid angle method. ठीक है. So this is what we are going to see today. We are going to see it with the solid angle method. Or for instance if you are having like this set of, if you have a point charge here and you need to find out the flux through this surface, ये जो मेरा irregular surface है, ठीक है, इसके through flux निकालना है अगर आपको, then how you are going to calculate the flux through this surface? Even the integration is not going to help you because each and every point the electric field intensity is different. At each and every point my angle is different. So how you are going to take out the flux going through दिस सरफेस, दिस इरेगुलर सरफेस के थ्रू कैसे निकालोगे आप? ठीक है. सो सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट से यू कैन यूटिलाइज द रेडियल सिमेट्री, क्योंकि सॉलिड एंगल हम लोग बेसिकली जब हमारा रेडियल सिमेट्री होता है ना, उस केस में वी आर गोइंग टू यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट रेडियल सिमेट्री to get the flux flowing through this lateral surface. ठीक है. So all those things we are going to see it today दिस सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट्स के थ्रू. ठीक है. फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे लाइक आई हैव टोल्ड यू दिस इरेगुलर सरफेस के थ्रू अगर हमें निकालना है, इस लेटरल सरफेस के थ्रू वी आर गोइंग टू सी विद द सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट्स कैसे निकालेंगे. एंड वी आर गोइंग टू सी द electric flux through if we are having the positive charge. So obviously it is radiating out the electric flux in all directions in a 3D manner. If you have to find out through this disk के through what is my electric flux going. Again this disk is flat disk, so at each and every point because the field is radial my theta will be different, my intensity magnitude of electric field will be different. ठीक है, because it is not radial, it is flat disk. तो again I will be, if I am going to do with integration, पहले एक ring select करो, ring के through I have to find out electric field, then I have to break it down in two components and then one component I have to add it up, e cos theta करके e sin theta will be cancelled. So all those tedious calculation will be there when we are solving it through the calculus. So this case also we'll see it through the concept of solid angle. फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे. we'll see some questions on the basis of flux calculation and one we are going to see the electric pressure or the force calculation. ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एक इलेक्ट्रिक प्रेशर. सो दैट कॉन्सेप्ट ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी इन वन ऑफ द क्वेश्चन. ओके, सो लेट अस बिगिन. कॉन्सेप्ट देखते हैं हम सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट. सो मैंने जैसे बताया क्या, सॉलिड एंगल इट इज़ अ वे टू क्वांटिफाई योर रेडिएशन और फ्लक्स. ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं एंड इट इज़ मोस्ट यूजफुल व्हेन यू हैव अ रेडियल सिमेट्री और व्हेन देयर इज़ अ पॉइंट सोर्स. ठीक है. सो फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ पे पॉइंट सोर्स है तो इट विल बी रेडिएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑल द डायरेक्शन. ठीक है, इट विल बी रेडिएटिंग ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑल द डायरेक्शन. नाउ अगर मेरे से पूछा जाए कि ये वाला जो सरफेस है, जो स्फेयर के ऊपर सरफेस है, इस यहाँ से कितना मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड पास ऑन कर रहा है. ठीक है, यहाँ से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास ऑन कर रहा है. सो it is going to get it from the
फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल क्या होता है मेरा, ये जो मेरा एंगल ड्रॉ हो रहा है ना, दिस एंगल. सो सॉलिड एंगल को ऐसे डिफाइन किया जाता है इधर थ्रू द सरफेस और थ्रू द लेटरल सरफेस ऑफ द कोन. सो ये मेरा जो कोन बन रहा है दिस इज़ 3D. अगर मैंने ये पीस निकाल दिया इसमें से, तो ये जो मेरा स्फेयर के थ्रू ये जो मेरा कोनिकल सेक्शन बन रहा है ना, जो लेटरल एरिया बना रहा है मेरा, ये 3D एंगुलर रीजन. 2D एंगुलर रीजन तो सिंपल मेरा फ्लैट सरफेस के थ्रू हो गया. ये जो मेरा 3D बना रहा है, ये 3D कोन का एंगल बना रहा होगा ना, ये वाला 3D. सो दैट 3D एंगुलर रीजन एनक्लोज बाय द लेटरल सरफेस ऑफ द कोन. ठीक है, लेटरल सरफेस ऑफ द कोन इज़ नथिंग बट माई सॉलिड एंगल. ठीक है, और ये जो मेरा, अगर मैं स्फेयर पे देखूँ तो स्फेयर पे ये वाला सरफेस एरिया कट हुआ है, इसके सेंटर से जो भी ये एंगल बना रहा होगा दैट एंगल वी कॉल जो भी इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एंगल बना रहा होगा दैट एंगल फ्रॉम द स्फेरिकल सेक्शन, दैट एंगल द 3D एंगल विच वी कॉल अ सॉलिड एंगल. ठीक है, दिस इज अ सॉलिड एंगल. सर्कल वाले, अगर मेरा सर्कल होता तो उस केस में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है दैट इज़ माय प्लेनर एंगल. ठीक है, नाउ स्फेयर है, स्फेयर का मतलब जो मेरा सरफेस एरिया मैं स्फेयर का लूँगा. ठीक है, और हर एरिया हर पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करता हुआ, हर पॉइंट के, अगर मैं सर्कल के हर पॉइंट को ज्वाइन करके इफ़ आई ड्रॉ ए कोन अप टू दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये जो मेरा एंगल होगा दिस एंगल, सो दिस एंगल इज़ नथिंग बट माई this solid angle, this 3D angle is nothing but my solid angle. ठीक है, so here if you take this piece, so this is your solid angle for the radius r and at a. So here I have told you that it is very much helpful when you have a radial symmetry, when from the point source something is spreading out. ठीक है, in that cases it is very much helpful to use the solid angle concept. ठीक है, so solid angle at A, it is making this solid angle at A. So this is my solid angle. ठीक है, this is my solid angle, it is making at A. तो solid angle का निकालते कैसे हैं हम लोग. सपोज फॉर इंस्टेंस मेरा सरफेस दे रखा है, ये इसका मेरे को सॉलिड एंगल निकालना है. तो इसका सॉलिड एंगल निकालने के लिए मैं ये सारे सरफेस के पेरीफेरे से लाइनें सारी ज्वाइन कर लूँगा. सारे पेरीफेरल से जितने भी इसके पेरीफेरी से जो भी लाइन मेरी एक पॉइंट पे ज्वाइन कर दूँगा मैं, जहाँ पे मीट अप हो रही है. देन एट अ डिस्टेंस r, whatever is the surface area, and at a distance r2, whatever is the surface area, there is a relation here. Because of symmetry, it is omega, this angle is equal to, ये जो angle बनेगा that this omega angle is equal to ये surface area divided by ये r square, and this surface area divided by इसका यहाँ से from the point the center of curvature से, और ये जो जहाँ पे ये o जो है यहाँ से this my r. ठीक है, और अगर मेरे को so this is my S2 and here यहाँ से यहाँ तक this is my R2. ठीक है, so this way you can calculate the value of omega. Omega is nothing but कि अगर मेरे को ये D का I have to find out the surface, I have to find out the solid angle for this D. तो इससे क्या करेंगे हम लोग, पेरीफेरल से will draw the lines from this peripheral. ठीक है, और फिर at a distance R1 surface जो भी मेरा बनेगा at a distance R2, this is my surface. ठीक है, and there is a relation between these surfaces because of geometry. It is omega is equal to S1 divided by R1 square is equal to S2 divided by R2 square. So omega मेरा solid angle होगा, surface area for this, ठीक है, जो भी इसके अंदर आ रहा होगा, डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक का रेडियस. ठीक है, और सरफेस एरिया ऑफ दिस एनी पॉइंट यू कैन टेक द सरफेस एरिया, यहाँ पे भी ले सकते हो, एट एनी पॉइंट यू कैन टेक द. तो ये जो सरफेस एरिया होगा जो इसके सेंटर से डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर डिवाइड बाय उसका स्क्वायर होगा. सेम वे S2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर. सो दिस इज माई सॉलिड एंगल. ये रिलेशनशिप आता है मेरा सॉलिड एंगल, सरफेस एरिया और सरफेस एरिया एट फ्रॉम द जस्ट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर से. ठीक है, सो this is my relationship. So SI unit of my plane angle is my radian, and the SI unit of my solid angle is my steradian. ठीक है, 1 steradian is my my surface area is equal to radius square. So here also you can see अगर surface area is equal to radius square, that will give you the value of 1 steradian. So 1 steradian is when you have the surface area which is equal to your radius square. So this is what the definition and what is the how we are calculating the omega. ठीक है, now we'll see कि अगर अभी तक हमने देखा था यहाँ पे कि
द एक्सिस ऑफ दिस का, इसका जो है ये सॉलिड एंगल का जो एक्सिस है दे आर अलाइनिंग, ठीक है। ये जो कोन मेरा बन रहा है, दिस कोन विच इज़ मेकिंग दिस कोन, इसका जो मेरा एक्सिस है, ठीक है, एंड दिस जो मेरा सरफेस एरिया है इसका एक्सिस, दे बोथ आर अलाइनिंग, ठीक है, दे बोथ आर अलाइनिंग। समटाइम्स क्या होगा, देन व्हेन दिस विल नॉट बी अलाइनिंग, ठीक है। सो ये मेरा सरफेस है, ये मेरा सरफेस होगा एंड दिस विल बी माई एक्सिस, ठीक है। दिस इज़ नॉट अलाइनिंग, दिस इज एट एट एंगल थीटा। तो इन दैट केस व्हाट विल बी माई सॉलिड एंगल, सो विल सी दैट। सपोज दिस इज़ माई स्मॉल ds। ये ऑलरेडी हमने गॉस लॉ जब हम डिराइव कर रहे थे, देयर ऑल्सो वी हैव सीन, सो आई हैव टोल्ड यू दैट वी आर गोइंग टू गो मोर प्रिसाइज इनटू इट व्हेन वी आर गोइंग टू सी द सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पे देखते हैं, सपोज ये मेरा एक स्मॉल एरिया है, ठीक है, दिस इज़ नॉट ये जो नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ दिस कोन, ठीक है। सो ये मेरा पॉइंट सोर्स है, यहाँ से दिस इज़ माई, इफ़ आई एम गोइंग टू कनेक्ट इट हेयर, सो इस एरिया को कनेक्ट करूँगा। सो दिस इज़ माई कोन बन रहा है मेरा, और यहाँ से कोन से जो दो मेरे दिस इज़ माई सरफेस 1, दिस इज़ माई सरफेस 2, ठीक है। और ये मेरा एक्चुअल सरफेस है, इसका जो मेरा रेडियल वेक्टर आ रहा है और द एरिया वेक्टर आ रहा है दैट इज़ इन दिस डायरेक्शन, और कोन का जो मेरा एक्सिस आ रहा है दैट इज़ इन दिस डायरेक्शन विच इज़ हैविंग द एंगल थीटा। सो इन दिस केस में वी हैव टू टेक अ प्रोजेक्शन ऑफ, इसका प्रोजेक्शन वी हैव टू टेक द अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ माई एक्सिस, ठीक है। इसका प्रोजेक्शन, इस एरिया का प्रोजेक्शन आई हैव टू टेक इट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। अगर ये थीटा है, सो दिस विल बी एस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, एस कॉस थीटा हो जाएगा। सो पहले हम लोग एस ले रहे थे, एस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, नाउ वी आर गोइंग टू टेक, अगर ये स्मॉल एंगल है तो डी एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो वी हैव टू टेक द, किसी भी डायरेक्शन में अगर हो मेरा, सपोज आई एम हैविंग इट इन दिस डायरेक्शन, सो वी हैव टू टेक द एंगल, वी हैव टू टेक दिस एंगल, वी हैव टू टेक द प्रोजेक्शन। इसको अगर मैं ज्वाइन करूँगा, सो वी हैव टू टेक द प्रोजेक्शन, तो ये वाला एंगल हो जाएगा, तो ये मेरा सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। इसका मैंने इस वाले बड़े वाले इस वाले का सरफेस एरिया मैंने प्रोजेक्ट कर लिया ऐसे, ठीक है, एंड दिस विल बी माई प्रोजेक्टेड एरिया। सो यहाँ पे जो एरिया आएगा दैट विल बी अ प्रोजेक्टेड एरिया, और विच विल बी द परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ठीक है। एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, दैट एरिया वी हैव टू टेक। Okay, now we'll find out the relationship between cone, half angle cone and my half angle cone and the solid angle at the vertex, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट देखते हैं, दैट कॉन्सेप्ट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। दिस कॉन्सेप्ट वी हैव सीन इट जब हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे थे कि सपोज दिस इज माई प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज माई माइनस क्यू चार्ज, और यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इट इज़ गोइंग हेयर एंड इज मेकिंग एन एंगल अल्फा हेयर एंड मेकिंग एन एंगल बीटा हेयर। तो ये वाला क्वेश्चन हमने देखा था, देयर वी हैव यूज दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन देखेंगे, हाउ वी हैव गॉट दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। वी आर गोइंग टू सी दैट नाउ। So we are going to see the relationship between solid angle and the half angle of the cone. So suppose spherical surface से I have cut down this portion and it is having the area m, ठीक है, इसका area m है, and we are having the this is my 3D angle, ये मेरा solid angle हो गया, और ये cone का मेरा एंगल हो गया, this is my phi, this is my cone angle is my half angle cone हो गया मेरा phi, ठीक है। नाउ इसमें क्या करना है मेरे को कि विद दिस हाफ एंगल कोन विल हैव टू बेसिकली विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस, ठीक है। इसका एरिया निकालेंगे हम, इन दिस एरिया विल फाइंड आउट द रिलेशनशिप, ठीक है। बिकॉज मेरे को ओमेगा पता है, ओमेगा क्या होता है मेरा, इट इज़ माई दिस एरिया डिवाइडेड बाय ये मेरा रेडियस, दिस इज़ माई आर ना, दिस इज माई आर, ठीक है, दिस एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो एस अगर मैं थ्रू माई दिस एंगल, इस फाई से अगर मैं एस निकाल दूँ इसका, ठीक है, एंड आई इक्वेट बोथ द सरफेस एरिया, विल गेट द रिलेशनशिप बिटवीन फाई एंड ओमेगा एंड फाई, ठीक है। सो मेरा जो मेन मूव फॉरवर्ड पॉइंट होगा कि मैं इस फाई के थ्रू फ्रॉम दिस फाई आई कैलकुलेट द सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया निकालते हैं, ठीक है। देन वी इक्वेट इट विद आर ओमेगा इज इक्वल टू सरफेस एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। इससे इक्वेट कर देंगे, फ्रॉम हेयर विल गेट द रिलेशनशिप। अब इसके थ्रू निकालते हैं। Now this area of this portion, this m का जो area होगा, we have to do the it is not a flat one, so it is having a kind of a curve ऐसे, तो we need to take the small element and we have to integrate it, ठीक है। So area of the m we have to take the small element, एक ring shape का ऐसे element ले लिया मैंने, ठीक है। We have taken this ring element ले लिया, this now we at this ring element is at ये जो इसका this ring element का जो the width of this ring element will be, suppose this is r, so this is my r, this is my theta and this will be my r d theta, ये जो ring element का मेरा ये होगा, this will be my r d theta,
ठीक है। सो एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, पहले हम डी एस निकालते हैं, ठीक है। डी एस निकालेंगे, डी एस इस पहले इस स्मॉल रिंग का डी एस निकालेंगे एंड वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम, ये मेरा थीटा है, फ्रॉम 0 to पाई, 0 to 5 इंटीग्रेट कर देंगे। एट एंगल थीटा वी आर टेकिंग अ रिंग, सो विल इंटीग्रेट 0 to 5 बिकॉज ये थोड़ा मतलब इट इज़ नॉट लाइक अ फ्लैट सर्फेस ना, इट इज़ लाइक ए कर्व्ड सर्फेस। तो कर्व्ड सर्फेस पे वी कैन नॉट टेक आउट द एरिया, ठीक है, वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन। तो इसलिए एक छोटा सा पोर्शन ले लिया, इट इज़ काइंड ऑफ अ फ्लैट सर्फेस, ठीक है। जब रिंग ले लिया हमने तो रिंग का जो होगा इट विल बी काइंड ऑफ अ फ्लैट सर्फेस होगा, तो दैट्स वाई वी आर टेकिंग अ स्मॉल पोर्शन एट एन एंगल थीटा ले लिया मैंने, ठीक है। नाउ अब इस स्मॉल रिंग का एरिया कितना हो जाएगा मेरा, दैट विल बी दिस इज़ माई आर, सो दिस इज़ एट एन एंगल थीटा, तो इसका रेडियस कितना हो गया आर साइन थीटा। सो इसका एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। व्हेन वी ओपन अप दिस रिंग इट विल बिकम अ रेक्टेंगल, ठीक है। और ये वाला हो गया मेरा आर डी थीटा हो जाएगा एंड दिस विल बी माई 2 पाई आर साइन थीटा, दिस विल बी माई 2 पाई आर साइन थीटा इसकी लेंथ। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, वी हैव गॉट दिस वैल्यू, डी एस इज दिस। नाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस डी एस फ्रॉम 0 to 5, ठीक है, फ्रॉम हेयर टू हेयर वी हैव टू डू, फ्रॉम 0 to 5 वी आर गोइंग टू डू। सो इफ यू आर गोइंग टू डू फ्रॉम 0 to 5, 0 to 5 करने पे यू विल गेट द कंप्लीट रिंग ना, बिकॉज 0 to 5 में मीन्स 0 मतलब ये वाला रिंग है, फिर ये रिंग धीरे धीरे बढ़ती रहेगी ना, दिस रिंग धीरे धीरे बढ़ती रहेगी एज योर फाई इज इंक्रीजिंग, एज योर दिस फाई इज इंक्रीजिंग, और अप टू द 5 यू विल कवर अप दिस कंप्लीट रिंग, ठीक है। ये कंप्लीट रिंग आ जाएगी इसके सेंटर से ये, ठीक है। सो इन दैट केस विल कवर अप द कंप्लीट सर्फेस कवर अप कर रहे हैं विद 0 to 5। 0 to 5 किया यहाँ पे, मेरा साइन थीटा और कॉस थीटा इज़ द ओनली थिंग। साइन थीटा को मैंने पुट कर दिया, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। 0 to 5 पुट किया, सरफेस एरिया आ गया मेरा दिस 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस 5। नाउ वी इक्वेट दिस विद आवर इक्वेशन, ये जो हमने लास्ट यहाँ पे देखी थी दिस वन, तो यहाँ पे सरफेस एरिया से इक्वेट कर देंगे। सो सरफेस एरिया यहाँ पे इज इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर, तो ओमेगा और इसमें रिलेशनशिप आ गया मेरा 5 में, ओमेगा आ गया मेरा 2 पाई 1 minus cos phi. So I've got the relationship between half angle, this is my half angle phi, this is my phi half angle and my omega, 3D एंगल के बीच में मेरा रिलेशनशिप आ गया 2 पाई 1 माइनस कॉस फाई, ठीक है। सो नाउ दिस इज़ क्वाइट एन इंटरेस्टिंग रिजल्ट। इसके बेसिस पे विल सी द concept of solid angle, how we are going to use this particular concept to find out the flux at in a closed surface or in some irregular surface. So we are going to find out through this, ठीक है। this concept, this particular formula you need to remember, omega is equal to 2 pi 1 minus cos phi. Now solid angle we'll see, अभी हमने देखा सॉलिड एंगल एंड अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट सॉलिड एंगल एनक्लोज बाय क्लोज सरफेस, ठीक है। सो हमने अभी तक हमने देखा था दिस इज माय ओपन सरफेस, एक जस्ट कोन है बस ये, ठीक है, ये छोटा सा सरफेस है। अगर मेरा ये पूरा का पूरा हो, ठीक है, और ये पॉइंट सोर्स हो, तो ये अभी तक हमने ये वाला पोर्शन पढ़ा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन पढ़ा है। इसका जो अगर मेरा फाई है और इसका मेरा जो ओमेगा है मेरा सॉलिड एंगल, ठीक है, इतना पोर्शन पढ़ा है। अब इसको मैं एक्सटेंड करके पूरा स्फीयर भी कर सकता हूँ बाय चेंजिंग दिस फाई, ठीक है। इसको मैं अगर फाई को बढ़ा दूँ, सो इफ़ आई कीप ऑन इंक्रीजिंग द फाई, तो ये मेरा ये बढ़ता जाएगा ना। इफ़ आई कीप ऑन इंक्रीजिंग द फाई, यहाँ से फाई हो गया मेरा ये एक लेवल पे जाके अगर मैं फाई 90 डिग्री कर दूँ, दिस इज माई फाई, सो दिस विल बिकम अ हेमिस्फेयर, ठीक है, ये हेमिस्फेयर बन जाएगा अगर मैं फाई 90 डिग्री कर दूँ। और एक पॉइंट पे जाके अगर मैं फाई को 180 डिग्री कर दूँ, ये नीचे तक आ जाएगा एंड इट विल मेक अ स्फेयर दैट वी आर गोइंग टू सी। सो अप टिल नाउ वी हैव स्टडीड कि स्फेरिकल पोर्शन का ये वाला पोर्शन हमने पढ़ा और इसके बीच में हमने रिलेशनशिप निकाला 3D जो एंगल है मेरा विच इज़ सॉलिड एंगल विच इज़ इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस फाई इज़ माई हाफ एंगल कोण। अगर मैं थीटा को इंक्रीज़ कर दूँ, एज आई हैव टोल्ड यू, थीटा को फाई को इंक्रीज़ किया मैंने यहाँ से, वी हैव मेक इट 90 डिग्री, ठीक है, ये फाई को इंक्रीज़ करके वी हैव मेक इट टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ गया, दिस पोर्शन, दिस सरफेस इट इज़ गोइंग टू गेट कवर्ड, ठीक है, दिस इज़ अ हेमिस्फेयर। इफ माई फॉर द हेमिस्फेयर व्हाट इज़ माई सॉलिड एंगल, इफ़ आई पुट द वैल्यू ऑफ फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा दिस विल गेट 0, सो वैल्यू मेरी ओमेगा आ गया इज़ माई 2 पाई। सो दिस इज़ माई सॉलिड एंगल फॉर द हेमिस्फेयर, ठीक है। सो दिस इज कंप्राइजेज ऑफ अ फ्लैट सरफेस एंड दिस स्फेरिकल सरफेस। तो अगर मेरा कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा है, ठीक है, पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा है एट अ हेमिस्फेयर और अ फ्लैट सरफेस, तो जो मेरा फ्लक्स जाएगा दैट विल बी गोइंग थ्रू दिस 2 पाई, ठीक है, दिस इज माई 2 पाई, दैट
दैट इज इट इज सेइंग। तो इसके थ्रू जो फ्लक्स जाएगा दैट फ्लक्स विल बी इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे कोनिकल सेक्शन भी ले लूँ, ठीक है, इसके थ्रू भी जो मेरा फ्लक्स जाएगा दैट विल ऑल्सो भी स्फेयर ही होगा ये भी, सो दैट विल ऑल्सो बी 2 पाई, ठीक है। और इसके थ्रू भी जो मेरी लाइन, इसके थ्रू भी जो जाएगा, इसका भी जो मेरा सॉलिड एंगल होगा फॉर दिस क्लोज सरफेस नहीं है यहाँ पे, ये फ्लैट सरफेस पे अगर मेरा कोई पॉइंट रखा है, सेम वे यहाँ पे मेरा फ्लैट सरफेस पे पॉइंट है, तो इसके थ्रू भी जो मेरी सॉलिड एंगल बनेगा और इसके लिए भी जो मेरा सॉलिड एंगल बनेगा, फॉर बोथ ऑफ देम माय सॉलिड एंगल इज़ 2 पाई, ठीक है। जो मेरा सॉलिड एंगल ये हेमिस्फेयर के लिए बन रहा है, ठीक है। एनी हेमिस्फेरिकल क्लोज सरफेस अगर मेरा ये है एंड इफ़ आई एम हैविंग दिस, सो फॉर दिस अगर मेरा पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ है, तो फॉर दिस ऑल्सो अगर मेरा पॉइंट यहाँ पे ऑन द फ्लैट सरफेस रखा हुआ है, ठीक है, अगर मेरा चार्ज यहाँ पे रखा है, तो फॉर दिस सरफेस ऑल्सो माई सॉलिड एंगल is 2 pi. So remember it is on a flat surface, it is not inside the surface, ठीक है, just remember it is not inside the surface, it is on a flat surface पे रखा गया है। This charge is on the flat surface, this charge is on the flat surface and this charge is on the flat surface. It is not inside here, it is not inside here, ठीक है, on the flat surface है। तब उस केस में मेरा जो solid angle आएगा that will be 2 pi, okay। अब हम देखते हैं अगर मैंने इसको 180 डिग्री कर दिया, if I make phi as 180 डिग्री, ठीक है, ये फाई को घुमा के पूरा मैंने यहाँ तक ले आया, इट विल बी 180 डिग्री। सो नाउ इट विल कवर अप द कंप्लीट स्फेयर, ठीक है, पूरा स्फेयर कवर अप कर लेगा व्हेन आई एम हैविंग द फाई एस पाई, ठीक है। फाई जब मेरा पाई हो जाएगा यहाँ पे, सो इट विल बी सॉलिड एंगल कितना आ गया मेरा 4 पाई इन दैट केस, ठीक है, इन दैट केस सॉलिड एंगल इज माई 4 पाई। सो व्हेन माई फाई इज 180 डिग्री it will do a complete sphere closed, now it is a closed region हो गया ना ये पूरा का पूरा। अभी तक यहाँ पे भी ओपन था, ये फ्लैट सरफेस था एंड इट इज़ ओनली कर्व्ड, ये पूरा नीचे वाला पोर्शन ये वाला ओपन था, ठीक है, ये वाला पोर्शन ओपन था। अब क्या है मेरा, जब ये मैंने जब मेरा फाई 180 डिग्री कर दिया, देन इट इज़ नाउ अ क्लोज सरफेस, सो फॉर द क्लोज सरफेस माई सॉलिड एंगल इज ऑलवेज 4 पाई, फॉर द क्लोज सरफेस माई सॉलिड एंगल इज 4 पाई। सो स्फेरिकल सरफेस, सो इन द केस जैसे मैंने बोला ना फॉर द क्लोज सरफेस, अगर इंस्टेड ऑफ दिस अगर ये मेरा क्लोज सरफेस होता और मेरा चार्ज यहाँ पे होता, देन आई कैन से माई सॉलिड एंगल फॉर दिस विल बी 4 पाई, ठीक है। ये 4 पाई से देन इट विल बी रेडिएटिंग थ्रू 4 पाई ओनली, फिर 4 पाई, ठीक है, अगर ये क्लोज सरफेस होता तो। अभी क्या है मेरा ऊपर वाले जो ये वाले केस में हमने लिया था, इट इज़ ये वाला पोर्शन ओपन है, तो दैट मीन्स इट इज़ ओनली पासिंग थ्रू 2 पाई, तो इसका जो सॉलिड एंगल बनाएगा दैट विल बी 2 पाई। अब जो होगा अगर ये मेरा चार्ज यहाँ पे है, देन इट विल बी स्प्रेडिंग ओवर इन ऑल 3D रीजन, देन द सॉलिड एंगल फॉर दिस केस विल बी द 4 पाई। हम देखेंगे आगे। सो नाउ स्फेरिकल सरफेस है, तो इन दैट केस वी हैव सीन 4 पाई। नाउ दिस सबसेंट सॉलिड एंगल 4 पाई एट द सेंटर, ठीक है, इट इज सबसेंट सॉलिड एंगल 4 पाई एट द सेंटर। सो एवरी क्लोज सरफेस इन द 3D प्लेन सबसेंट 4 पाई सॉलिड एंगल। सो अगर ये भी मेरा 3D एंगल है, 3D क्लोज सरफेस है, ये ओपन नहीं होना चाहिए, इफ़ दिस कोन इज क्लोज्ड और आई कैन टेक दिस वे, और यहाँ पे मैं अगर चार्ज रख दूँ, देन आई कैन से के नाउ माई सॉलिड एंगल फॉर दिस क्लोज सरफेस इज़ माई 4 पाई, ठीक है। इसके लिए भी अगर मैं इफ़ आई डू, इसको भी मैं इन्वर्ट करके इसको भी ऐसे क्लोज कर दूँ, मैं इसको भी मैं इन्वर्ट लेके अगर मैं क्लोज कर दूँ, देन और सेंटर पे ही मेरा पॉइंट है, चार्ज है, सो इन दैट केस ऑल्सो इट इज़ हैविंग द सॉलिड एंगल एज 4 पाई। सो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए इन अ 3D प्लेन माई सॉलिड एंगल इज ऑलवेज 4 पाई, ठीक है। और पहले वाले केस में था हमारा ये फ्लैट सरफेस पे था, ये सरफेस मेरा ओपन था, दैट्स वाई माई सॉलिड एंगल इज 2 पाई, और अगर क्लोज कर दें हम इसे, इट विल बिकम अ 4 पाई। नाउ विल फाइंड आउट, विल अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कि अगर मेरा कोई भी पॉइंट सोर्स है, इफ वी आर हैविंग द क्लोज सरफेस फ्रॉम दिस पॉइंट सोर्स, what will be my flux going out, so this जो solid angle बनेगा इसका at the center, ये closed surface है, at the center solid angle will be 4 पाई, ठीक है। और कोई भी मेरा 3D फिगर है, सपोज दिस कोन इज माई 3D फिगर एंड दिस इज अ क्लोज्ड कोन, और इसके सेंटर पे, और सेंटर नहीं और किसी भी पॉइंट पे इफ आई टेक, इट विल बी हैविंग अ सॉलिड एंगल 4 पाई, it will also having the solid angle 4 pi, right? Now we will see some application of that. Okay, so हमें निकालना है electric flux due to a point charge crossing the disk. So this is my point charge, ठीक है. So now
इट इज़ गोइंग टू स्प्रेड ओवर द फील्ड इन ऑल 4 डायरेक्शन, ठीक है, सारी डायरेक्शन में इस पर फील्ड जा रहा होगा. सो हेयर यू कैन सी, ठीक है, दिस इज माई सॉलिड एंगल. इससे इन ऑल 4 डायरेक्शन, इन ऑल द 3 डायरेक्शन इट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्प्रेडिंग आउट, ठीक है. नाउ आई हैव टू फाइंड आउट कि इसके थ्रू कितना है, ठीक है. वी हैव टू फाइंड आउट जो यहाँ से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके थ्रू कितना पास आउट हो रहा है, ठीक है. सो दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी हैव टू फाइंड आउट, सॉरी नॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है कि इस डिस्क के थ्रू from this charge how much will be the electric flux passing through, ठीक है. one approach is to because my electric field is varying, so what we'll take a ring पे लेके we'll find out the electric field here, we'll break it down in 2 portion and ये e cos theta लेके इंटू इसका ds लेके और इसको इंटीग्रेट कर दो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फाई. वन थिंग इज़ टू गेट द फाई लाइक दिस, ठीक है. वन थिंग इज़ टू गेट मेक द एलिमेंटल रिंग बिकॉज ई इज़ वेरिंग, थीटा इज़ ऑल्सो वेरिंग, ई इज़ बिकॉज ई इज़ रेडियल, सो थीटा वेरिंग, और ई इज़ वेरिंग बिकॉज रेडियस इज़ वेरिंग. So we have to integrate it. That is one way. Another approach, as I've told you initially, we are going to go through the solid angle. So solid angle approach देखते हैं. Suppose this is my plus charge, so it is spreading in all the direction. So इसका जो solid angle होगा it is 4 pi. So it is spreading this in the 4 pi. ठीक है. अगर मैं पूरा का पूरा surface ले लूँ, so it is having it is spreading all the field in 4 pi direction. ठीक है. It is spreading all the field in 4 pi. ठीक है. So अगर मेरा center charge यहाँ पे है, so ओवरऑल केस में इट इज़ माई 4 पाई. नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द सॉलिड एंगल क्रॉसिंग दिस डिस्क ओनली, ठीक है. सो जितना मेरा ये डिस्क के थ्रू सॉलिड एंगल बन रहा होगा उतना मेरा फ्लक्स यहाँ से जा रहा होगा. आई कैन से सो माई क्यू जो चार्ज है इट इज़ फॉर माई 4 पाई, दिस इज़ नॉट ओमेगा, दिस विल बी 4 पाई. फॉर 4 पाई आई एम हैविंग द because of the q I'm having the 4 pi. So because of this q, what is my flux? My flux because of q will be we know this is the only the flux will be q enclosed divided by epsilon naught. So because of this q, if we take the complete, अगर मैं ऐसे ये complete एक हेमिस्फीयर स्फीयर ले लूँ, so flux through this q will be q divided by epsilon naught हो गई, ठीक है. नाउ दिस फ्लक्स इज व्हाट दिस फ्लक्स इज, दिस इज स्प्रेडिंग इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है. सो सॉलिड एंगल फॉर दिस फ्लक्स फॉर दिस q विल बी सॉलिड एंगल इज 4 पाई फॉर दिस ओवरऑल फ्लक्स, ठीक है. पूरे 3D में जो सॉलिड एंगल जो पूरे 3D में ये q की वजह से जो फ्लक्स जा रहा होगा इट इज़ इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट एंड इट विल बी 4 पाई जो सॉलिड एंगल बना रहा होगा. सो q 4 पाई पे जो सॉलिड एंगल जो फ्लक्स जा रही होगी दैट विल बी q बाई एप्सिलॉन नॉट. 1 पे कितनी जा रही होगी, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. एंड इफ़ आई फाइंड आउट कि ये मेरा सॉलिड एंगल कितना है, इफ़ आई फाइंड आउट दिस सॉलिड एंगल कितना है, तो आई कुड एबल टू फाइंड आउट कि इसके थ्रू कितनी मेरी फ्लक्स जा रही होगी. दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है. अगर मेरे को ये वाला सॉलिड एंगल मिल जाए, ये वाला सॉलिड एंगल मिल जाए, तो आई कैन फाइंड आउट कि मेरा डिस्क के थ्रू कितनी जा रही होगी. दैट इज़ व्हाट वी विल डू इट राइट नाउ. सो मैंने देखा कि मेरी ये देयर इज़ अ लिंक बिटवीन, देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन कोन, हाफ एंगल कोन एंड सॉलिड एंगल के बीच में हमने रिलेशनशिप देखा था इन द लास्ट स्लाइड. सो दैट इज़ ओमेगा इज इक्वल टू सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस फाई इज़ माई सॉलिड एंगल. सो अगर मैं इस डिस्क के थ्रू निकालूँ, ये क्यू जो स्प्रेड कर रहा होगा इन ऑल 4 डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन कर रहा होगा, सो इट विल बी हैविंग द सॉलिड एंगल 4 पाई, ठीक है. 4 पाई जब इसका सॉलिड एंगल है तब ये इसका फ्लक्स है q बाई एप्सिलॉन नॉट. जब इसका सॉलिड एंगल 4 पाई है, फ्लक्स है q बाई एप्सिलॉन नॉट. अब मेरे को इस वाला सॉलिड एंगल निकालना है बस. आई हैव टू फाइंड आउट दिस सॉलिड एंगल. तो मेरा ये फ्लक्स आ जाएगा इसके थ्रू कितना है, ठीक है. अब सॉलिड एंगल निकालते हैं ये, ठीक है. मेरे को पता है दिस इज़ माई फाई, ये मेरा फाई है एंड आई कैन टेक आउट द फाई फ्रॉम द ज्योमेट्री हियर. दिस इज़ माई r, दिस इज़ माई a गिवन, सो दिस विल बी a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. तो यहाँ पे जो मेरा ये थीटा, ये मेरा अगर सपोज दिस इज़ माई फाई, तो यहाँ पे मेरा सॉलिड एंगल निकालना है इसका विथ माई हाफ एंगल कोन. सो दिस माई रिलेशनशिप 2 पाई 1 माइनस कॉस फाई कितना हो गया मेरा, a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर बाई r स्क्वायर. दिस माई कॉस फाई. सो फ्रॉम हेयर आई हैव गॉट दिस वैल्यू ऑफ माई सॉलिड एंगल फॉर दिस डिस्क. इस डिस्क का मेरा ये सॉलिड एंगल आ गया 2 पाई 1 माइनस a डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. नाउ for this disk what will be my
व्हाट विल बी माई फ्लक्स, सो क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट मेरी 4 पाई के लिए थी, 1 के लिए कितनी हो गई 1/पाई कर दी, 1/4 पाई कर दिया, इनटू इस सॉलिड एंगल के लिए कितनी हो गई दिस, ठीक है, 1 सॉलिड एंगल के लिए ये हो गई, इनटू ये मेरा सॉलिड एंगल डिस्क का है, इनटू मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ माई फ्लक्स थ्रू दिस सॉलिड एंगल, ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, राइट. सो इट मेड आवर कैलकुलेशन क्वाइट ईजी. So that's why this concept is quite strong when you are finding when you are having the radiating field, radiating charge, or radiating flow of liquid, radiating flow of light. So in those cases or in radiation also, heat radiation also, so in all those cases this solid angle is quite a useful concept. अब same way जैसा कि हमने देखा था, अब हम इसके थ्रू निकालें. सपोज ये मेरा चार्ज रखा है एंड दिस इज़ इन दिस वेसल, ऐसे वेसल में रखा हुआ है, चार्ज मेरा रखा हुआ है, मेरे को बताना है इस लेटरल सरफेस के थ्रू what is my electric field through this, what is my flux through this lateral surface. अब it is quite difficult to do it with the integration method, but we know कि अगर मैं इसके थ्रू निकाल लूँ कि यहाँ से मेरा फ्लक्स कितना जा रहा है, ठीक है, मेरे को पता है पूरे 4, अगर मेरा Q टोटल के थ्रू कितना होगा, मेरा ओवरऑल कितना होगा मेरा, बिकॉज ऑफ सॉलिड एंगल 4 पाई, टोटल फ्लक्स विल बी Q बाय एप्सिलॉन नॉट. अगर मैं इसके थ्रू निकाल दूँ, इस वाले सॉलिड एंगल के थ्रू, एंड आई माइनस इट बाय Q बाय एप्सिलॉन नॉट, जो मेरा टोटल फ्लक्स है, उससे मैं ये वाला फ्लक्स माइनस कर दूँ, ये वाला, इसके यहाँ से जो मेरा फ्लक्स जा रहा होगा, आई विल गेट द फ्लक्स थ्रू दिस, इसके थ्रू मेरा फ्लक्स आ जाएगा. दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, विल माइनस द फ्लक्स ऑफ दिस डिस्क विद माई कंप्लीट ये स्फेयर अगर मेरा होता, सो जो मेरा टोटल Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता. Q बाय एप्सिलॉन नॉट टोटल है फॉर 4 पाई, यहाँ मेरा इस डिस्क के थ्रू आ जाएगा, इस डिस्क के थ्रू, दिस इज़ वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड Q by 2 epsilon naught 1 माइनस, अगर ये मेरा if my radius is r and this is my a, this distance, so this is my Q disk, ठीक है, फ्लक्स थ्रू डिस्क आ गया मेरा यहाँ से. अब मेरे को ओवरऑल मेरे को पता है Q के थ्रू कितना है, Q के थ्रू Q by epsilon naught when my solid angle is 4 पाई, ठीक है, जो ओवरऑल मेरा इट्स Q by epsilon naught, और डिस्क के थ्रू जा रहा है मेरा दिस. तो व्हाट इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट थ्रू दिस लेटरल, सो फ्लक्स थ्रू लेटरल विल बी Q by epsilon naught minus Q by 2 epsilon naught 1 minus a divided by root a square plus r square, ये वैल्यू आ जाएगी a square plus r square, ठीक है. तो मैंने Q के थ्रू जो ओवरऑल बाकी सारा निकल रहा होगा, इसमें से ये वाले सॉलिड एंगल का फ्लक्स माइनस कर दिया, इस वाले सॉलिड एंगल का फ्लक्स माइनस कर दिया फ्रॉम द ओवरऑल सॉलिड एंगल फ्लक्स, वी हैव गॉट दिस वैल्यू, ठीक है. सो दैट इज़ वेयर यू कैन फाइंड आउट विद दिस इरेगुलर सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना है, दैट ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट. सेम वे अगर मेरा ये ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पे चार्ज है, और मेरे को इसके थ्रू इस इरेगुलर सरफेस के थ्रू निकालना, सेम वे यू कैन डू, इस डिस्क के थ्रू आपने निकाल लिया, डिस्क के थ्रू ये वैल्यू होती है, एंड यू जस्ट माइनस इट बाय Q बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि मेरा पूरा 4 पाई सॉलिड एंगल की वजह से है, यू माइनस इट दैट एंड यू कैन गेट इट द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस. ओके, सो दैट वे यू कैन ईजिली कैलकुलेट. नाउ विल मूव ऑन. अब कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं, विल सी सम क्वेश्चंस. अब हमारा जो कॉन्सेप्ट था, हमारा सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट दैट वी हैव डन, नाउ विल सी सम क्वेश्चंस फाइनली, ठीक है. सो दैट वाज आवर सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट, एंड वी हैव सीन द रिलेशनशिप बिटवीन सॉलिड एंगल एंड हाफ एंगल, दैट इज 2 पाई 1 minus cos phi is my omega. So that is my relationship between solid angle and half angle, and we have seen the electric flux with the solid angle concept. Now we are going to see some questions not on this flux भी है हमारा, electric field भी है, so everything will be related जो questions है, ठीक है. so क्वेश्चन देखते हैं पहला. इसमें क्या कह रहा है मेरा, एक infinitely large layer of charge of the uniform thickness T is placed in normal to the existing electric field. अगर कोई electric field है E, उसके normal एक infinitely large layer of charge of thickness T रखी हुई है, ठीक है. The charge on the sheet alters the electric field so that it remains uniform on both the sides, and assume E1 and E2. So because of this some charge will be induced on this surfaces, ठीक है. इस surfaces पे charge आएगा, जिसकी वजह से they have some electric field in their vicinity. हमने पढ़ा था on the surface of conductor, near to the surface of conductor my electric field will be there, so we know some electric field will be coming. Suppose यहाँ पे कुछ charge आ गया, some charge will be coming here, suppose positive
negative, some charge will be coming. So because of that some electric field will be coming. Some electric field इसकी वजह से इस डायरेक्शन में आ गया, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में आ गया, if some charge is coming. ठीक है, because of this electric field some charges inducing on this sheet, because of that some electric field in the vicinity is going to come, and because of that the resultant of the electric field plus electric field due to the induced charges, ठीक है, इन दोनों का resultant जो भी होगा मेरा, if I take the resultant of this which is giving me these two electric fields E1 and E2 in this direction, that is what it is said. Now the charge distribution in the layer is not uniform, so इसके ऊपर जो charge distribution है in this layering, so जो भी मेरा charge distribution होगा it is not uniform, it depends on the distance from its faces. So यहाँ से so it depends on the distance from its faces, maybe यहाँ पे ज़्यादा होगा, इस face से यहाँ पे कम होगा, so it depends on the, basically it's not uniform, with the distance from the faces it is varying. Find the expression for the force per unit area experienced by the charge layer. ठीक है, we have to find out the force on this charge layer. ठीक है, इस charge layer पे force निकालनी है मेरे को. So force क्या होती है basically मेरी, force is my Q into E. ठीक है, मेरे को चार्ज निकालना, ऑब्वियसली E मेरे को दिया हुआ ही है, मेरे को ऑब्वियसली दिस फोर्स इज इक्वल टू Q into E. आई हैव टू फाइंड आउट दिस Q. ठीक है, दिस Q वी हैव टू फाइंड आउट. Q इट इज़ बिन गिवन वेरिंग, हमारे को रिलेशनशिप निकालनी पड़ेगी E1, E2 एंड E में, then only we could able to do. So let's start. So suppose this is my E external given, so because of this E external some charge got induced onto these surfaces. ठीक है, some charge got induced, we have sorted के this charges are this plus charge got induced on this uniform thickness, so this charges got induced onto it, onto this sheet. So because of this charge we have got ये जो induced charges की वजह से इसके ऊपर electric field इतना आएगा, that is because of the induced charge onto this, and here also we have got the इन दोनों का जो सेम होगा ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी इधर होगा, इसकी वजह से भी इधर होगा, बिकॉज ऑफ दिस इंड्यूस चार्जेस एंड दिस इंड्यूस चार्जेस. तो इसकी वजह से इधर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ई, सपोज बिकॉज ऑफ दिस लेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, बिकॉज ऑफ दिस लेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस. ठीक है, अब मेरा नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बिकॉज ऑफ दिस प्लस इंड्यूस चार्जेस की वजह से we have got the E1 and E2. So that is what E1 is my E minus EL. So E is in this direction, EL is in this direction. Same way E2 क्या आएगा मेरा E plus EL. So E मेरा इस डायरेक्शन में है और EL मेरा ऑलरेडी इस डायरेक्शन में है. So यहाँ पे आ गया E plus EL. Now if I do E1 plus E2, I'll cancel EL. EL मेरा कैंसिल हो जाएगा. I got the relationship between E and E. ठीक है, मेरे को फाइनल रिलेशनशिप फोर्स में निकालनी है और मेरे को गिवन बस ये है, ये इट इज़ नॉट गिवन टू अस. So only E, E1, E2, that these two things are only given to us. We have to find out the force in E1 and E2. Okay, so यहाँ पे मेरा आ गया, if I added those, so I've got the value of E1 plus E2 as 2E. ठीक है, so E यहाँ से आ गया मेरा E1 plus E2 by 2. So that is my E has come. Now I will apply, because there's a charge stored into it, Q is there, because my electric field here is different, here is different. So यहाँ से कुछ enter कर रही होगी electric field lines. ठीक है, और because of this Q charge inside it, some electric field line will be coming out here. So we'll do the net flux. ठीक है, net flux निकालते हैं. From here we can get the Q कि चार्ज कितना स्टोर है डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. यहाँ से मेरा नेट फ्लक्स निकालते हैं. यहाँ पे नेट फ्लक्स कितना होगा, E1 इंटू एरिया, सॉरी ये एंटर कर रहा है तो माइनस E1 इंटू एरिया, यहाँ से एग्जिट कर रहा है E2 इंटू एरिया, दैट विल गिव मी Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट द चार्ज इनसाइड इट. यहाँ से मेरा एक रिलेशनशिप आ गया E2 माइनस E1 डिवाइड बाई Q बाई ए, मैं इधर ले आया Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट. ओके, नाउ फोर्स मुझे पता है, फोर्स इज माई Q इंटू E. यहाँ पे मैंने एरिया से डिवाइड कर दिया क्योंकि मेरे को Q बाई ए पता है. आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ Q, आई नो द Q बाई ए फ्रॉम माई फ्लक्स रिलेशनशिप. ठीक है, नाउ आई नो माई Q बाई ए. From here we put the value of Q by A, which is E2 minus E1, and I know the value of E from here, E1 plus E2. Here you got the value of F. ठीक है, you have to find out force per unit area ही निकालना है. So you have got the value, this is what you have to find out, force per unit area. You have got epsilon naught Q by A, मेरे को from here you can get it Q by A epsilon naught E2 minus E1. ठीक है, और E की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल दी, you have got this. ठीक है, सो इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि जब इंड्यूस चार्ज हो जाएगा उसकी वजह से जो कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड विसिनिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, हियर इन दिस डायरेक्शन, और वो जो वैल्यू होती है दैट इज सेम वैल्यू. यू कैन टेक इट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लेने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट टेक द वैल्यू EL, बिकॉज अल्टीमेटली आपको ये दे रखा है E1 और E2 नेट कितना आ रहा है, ये नेट इस डायरेक्शन में आ रहा है. सो एंड यू जस्ट यूज़ दिस E एक्सटर्नल एज E
और दिस विल गेट कैंसिल, ठीक है, दिस EL विल गेट कैंसिल. सो दैट इज़ व्हाट सम इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट वाज देयर कि इंड्यूस चार्जेस की वजह से और फिर फाइनल कितना आ रहा है, ठीक है, राइट. सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमारे को 3 प्लेट्स रखी हैं Q1, Q2 एंड Q3, ठीक है. सॉरी, हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी देखा 3 प्लेट का, बट वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, एक प्लेट को चार्ज किया था जिसकी वजह से बाकी दोनों प्लेट्स पे चार्ज इंड्यूस हुए थे, ठीक है. यहाँ पे क्या है, हमारे को 3 प्लेट दे रखी हैं एंड ऑल 3 इज़ हैविंग द सेपरेट चार्जेस. और उसके अंदर हमने देखा था अगर हमारी ये दोनों प्लेट को अगर हम अर्थ कर दें, सो इन दिस केस आई हैव टोल्ड यू विल वर्क इट with the voltage concept, so that's why we left that part there, ठीक है. अभी हमारे को इसमें भी if you do it with one sheet अगर आप कर रहे हैं, one side one plate अगर आप अर्थ कर रहे हैं, so you don't have to take the voltage concept, we can do it without the voltage concept. बट अगर दोनों साइड कर रहे हैं, यू नीड टू डू द वोल्टेज कॉन्सेप्ट एंड देर इज़ अ डिस्टेंस वेरिएशन. ये D1 अगर ये D2 डिस्टेंस वेरिएशन आ गया, सो देर ऑल्सो यू हैव टू डू इट विद द वोल्टेज कॉन्सेप्ट. सो अभी हमारा वो कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ करेंगे विदाउट वोल्टेज कॉन्सेप्ट, वी कुड एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. यहाँ पे मेरे को दे रखा है कि ये 3 प्लेट्स हैं, Q1 इसको चार्ज दिया, इसको Q2 चार्ज दिया, इसको Q3 चार्ज दिया, ठीक है. वहाँ पे हमने एक प्लेट को चार्ज दिया था एंड देयर द चार्जेस आर गेटिंग इंड्यूस्ड ऑन दिस प्लेट एंड वी हैव गिवन द चार्ज ऑन टू दिस ओनली Q. और यहाँ पे चार्ज इंड्यूसमेंट हो रहा था, हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा था. अभी क्या इस केस में क्या कह रहा है मेरे को, Q1 चार्ज मैंने 1 को दिया, Q2 मैंने इसको दिया और Q3 मैंने इसको दिया. मेरे को बताना है QA और QB, ये जो सरफेस है यहाँ पे, इस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और ये वाले सरफेस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बताना है. फिर मेरे से पूछा अगर मैं 1 को अर्थ कर दूँ, ये वाले को अगर मैं अर्थ कर दूँ, सो हाउ मच विल बी द चार्ज फ्लो फ्रॉम प्लेट टू अर्थ, ठीक है. प्लेट से अर्थ में कितना चार्ज जा रहा है मेरा, ठीक है, ये. और फिर मेरे से कह रहा है अगर मैं 2 को अर्थ कर दूँ, इफ़ आई एम गोइंग टू अर्थ 2, हाउ मच विल बी द चार्ज फ्लो फ्रॉम प्लेट टू अर्थ, ठीक है, प्लेट टू अर्थ में कितना चार्ज आ रहा है. सो हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, वो कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. अगर मेरा चार्ज है, सो आउटर सरफेसेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, अगर मेरा कोई Q1, Q2, Q3 रखें, आउटर सरफेसेस पे एक तो पहले आता है अंदर और ये बाहर प्लस माइनस होते हैं, ठीक है. दिस विल बी मतलब इक्वल एंड अपोजिट होंगे एंड दिस विल बी पॉजिटिव नेगेटिव, इक्वल एंड अपोजिट होंगे जो अंदर वाली प्लेट्स पे होंगे, बिकॉज दीज आर द बाउंड चार्जेस. अब बाहर वाले जो मेरे चार्जेस होते हैं इधर और इधर, दैट विल बी द समेशन डिवाइड बाई 2, इन तीनों का समेशन. सो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2. सो इन तीनों का समेशन, ये चार्ज यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और यही चार्ज मेरा इधर की साइड में आ जाएगा. सो कि इधर जो मेरे यहाँ पे चार्ज आएगा प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2. सेम वे यहाँ पे मेरा आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2. ये दोनों जगह मेरे चार्जेस आ जाएगा. यहाँ पे कितना चार्ज आ जाएगा, इधर इस वाले पे, दैट विल बी Q1 माइनस ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2. यहाँ पे ही आ जाएगा, इसका जो बचा हुआ आएगा, और इस पे कितना आ जाएगा, इसका माइनस आ जाएगा, ठीक है. जो मेरे को B पे आएगा वो इसका माइनस आ जाएगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट होते हैं ना यहाँ पे. अगर यहाँ पे मेरा चार्ज x है तो यहाँ पे माइनस x होगा, सो इक्वल एंड अपोजिट होगा. तो मेरा हमने देखा इस वाली प्लेट पे जो चार्ज आ गया, इन तीनों का समेशन डिवाइडेड बाई 2, ठीक है. फिर इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज आएगा, Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है. वो इस वाली प्लेट पे चार्ज आ गया मेरा. अब इसके इक्वल एंड अपोजिट यहाँ पे जो मेरा चार्ज आएगा इस वाली प्लेट पे, दैट विल बी इसका इक्वल एंड अपोजिट. इस चार्ज को मैं माइनस कर दूँ, इसका इक्वल एंड अपोजिट इस वाली प्लेट पे आ जाएगा. दैट इज़ व्हाट वी हैव डन. QA आ गया मेरा, दिस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. QB आ गया माइनस, जो Q1 माइनस मैंने पहले ही लगा दी बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट इस वाले सरफेस पे, दैट विल बी इक्वल एंड अपोजिट ऑफ दिस सरफेस. सो माइनस Q इस वाले सरफेस पे कितना होगा, Q1 माइनस QA, ठीक है. सो दिस विल गिव मी द वैल्यू -1/2 Q1 माइनस Q2 माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 डिवाइड बाई 2. सो दिस विल बी द चार्ज ऑन दिस सरफेस. इस सरफेस पे मेरा ये चार्ज आ गया. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि अगर मैं 1 को अर्थ कर रहा हूँ, देन व्हाट विल बी माई चार्ज फ्लो फ्रॉम प्लेट टू अर्थ, एंड Q को अर्थ कर रहा हूँ, व्हाट विल बी माई चार्ज फ्लो फ्रॉम प्लेट टू अर्थ. सो अगर मैंने 1 को अर्थ किया, तो 1 को अर्थ किया, सो सपोज हेयर वॉज सम पॉजिटिव चार्ज, सो नेगेटिव चार्ज यहाँ से आएंगे अर्थ से, एंड इट विल गोइंग टू न्यूट्रलाइज दिस प्लेट. सो यहाँ पे चार्ज 0 हो जाएगा. सो जब भी मेरा एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है, ठीक है, दिस इज़ वी आर कंसिडरिंग एन आइसोलेटेड सिस्टम, तो क्या अगर मैं एक प्लेट को अर्थ कर रहा हूँ, तो उस केस में क्या होता है ना कि जो मेरे बिल्कुल ये बाहर वाले चार्जेस होते हैं, ये वाले और ये वाले जो आउटसाइड ऑफ द एंडिंग प्लेट के होते हैं, दिस विल गेट 0, बिकॉज अगर ये 0 नहीं होंगे, सो माई इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन होती है कि मेरा
कंडक्टर के अंदर फील्ड ज़ीरो होना चाहिए। वो कब होगा कि ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल कर देंगे, फिर ये वाले और ये वाले क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट होंगे अंदर, ये वाले कैंसिल कर देंगे। अगर मेरा यहाँ पे कुछ चार्ज आ गया, सपोज प्लस क्यू चार्ज आ गया, तो इसकी वजह से मेरा यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, बिकॉज यहाँ पे तो अर्थ है, यहाँ तो जीरो रहेगा, ठीक है, और इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दैट इज गोइंग टू डिसबैलेंस माई इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के लिए मेरा चार्ज इस वाली प्लेट पे, जो आउटर मेरी प्लेट्स होती हैं उसके आउटर सर्फेसिस पे, आउटर प्लेट्स के आउटर सर्फेसिस पे चार्ज हमेशा जीरो होता है when even one plate is my कनेक्टेड विद अर्थ, ठीक है। अगर मैंने ये वाली भी कनेक्टेड विद अर्थ कर दी तब भी यही होगा, और मैंने ये वाली भी प्लेट मैंने कनेक्टेड विद अर्थ करी तब भी यही होगा, बिकॉज अदरवाइज अगर मेरा ये जीरो नहीं होगा देन आई विल नॉट बी हैविंग द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम वाली, कि मेरे कंडक्टर के अंदर चार्ज जीरो नहीं होगा। कंडक्टर के अंदर चार्ज कब जीरो होगा, बिकॉज हमें पता है यहाँ पे इफ़ वी आर हैविंग द चार्ज, इसके बाहर जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, नियर टू दिस। तो प्लस माइनस अंदर की साइड मुझे पता है प्लस माइनस साइन रहते हैं, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अगर किसी भी बाहर सरफेस पे रह गया सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू गेट कैंसिल। तो इसलिए हमेशा जब भी कोई भी मेरी प्लेट, कोई भी प्लेट मेरी अर्थ हो रही है, आउटर सरफेसेस पे चार्ज हमेशा जाके जीरो हो जाता है, ठीक है, जो कोई भी प्लेट मेरी अर्थ हो रही है। तो यहाँ पे सपोज मेरी ये वाली प्लेट अर्थ हो गई, ये वाला तो चार्ज मेरा न्यूट्रलाइज हो ही जाएगा, और यहाँ पे भी चार्ज मेरा जीरो आ जाएगा, ठीक है। ये चार्ज मेरा अर्थ होने के बाद बिकॉज ऑफ अर्थिंग दिस विल गेट जीरो एंड दिस विल गेट जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो इस वाली प्लेट पे मेरा टोटल चार्ज कितना था Q3, वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा प्लस Q3, ठीक है। अब ये प्लस Q3 यहाँ पे आ गया, इक्वल एंड अपोजिट होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस Q3 इस प्लेट पे, और इस प्लेट पे मेरा ऑलरेडी चार्ज कितना था Q2, ठीक है, और यहाँ पे माइनस Q3 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा Q2 प्लस Q3, ठीक है। अब Q2 प्लस Q3 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे कितना होगा फिर माइनस Q2 प्लस Q3, ठीक है, इसका इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि यहाँ पे मेरा कितना है इस वाले पे Q2 प्लस Q3, और इक्वल एंड अपोजिट इसका यहाँ पे आ जाएगा माइनस Q2 एंड माइनस Q2 प्लस Q3। अब इनिशियली कितना चार्ज था इस प्लेट पे, इट इज़ माई Q1, और फाइनल कितना हो गया मेरा चार्ज इस पर माइनस Q2 प्लस Q3, दैट मीन्स चार्ज कितना फ्लो आउट हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इतना चार्ज मेरा प्लेट से अर्थ की तरफ चला गया, तभी तो मेरी फाइनल वैल्यू नेगेटिव आई ना। सो इनिशियली मेरा Q1 था पॉजिटिव में, फाइनल मेरा ये हो गया। अगर मैं फाइनल तो मैंने इनिशियल करूँ, सो माई चार्ज फ्रॉम प्लेट टू अर्थ हैज़ गॉन, Q1 तो चला ही गया, उसके बाद ये Q2 और Q3 भी चला गया जो इस पर चार्ज था प्लेट पे, तभी मेरा नेगेटिव साइन हो गया ना। सो टोटल चार्ज विच हैज़ गॉन फ्रॉम प्लेट 1 टू अर्थ इज माई Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। नाउ सेकेंड केस देखते हैं, अगर मैं सेंटर वाली प्लेट को अर्थ करता हूँ, तो अगेन इन द सेम सिचुएशन कि मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, कि मेरे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी जीरो। वो कब जीरो होगा, जब ये दोनों और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई भी मेरा एक्सटर्नल पे, एक और कंडीशन जो मेन है, इट शुड बी आइसोलेटेड, कि कोई एक्सटर्नल चार्ज नहीं होना चाहिए, किसी भी प्लेट के आसपास यहाँ पे कोई एक्सटर्नल चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर एक्सटर्नल चार्ज होगा मेरा, देन इन दैट केस दिस इस वाले सरफेस पे जीरो नहीं होगा, अगर यहाँ पे कुछ मेरा चार्ज आ जाएगा, सो कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, देन इट विल नॉट बी जीरो। अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम आइसोलेटेड है, देन इन दैट केस देयर इज़ नो एक्सटर्नल चार्ज, देन इन दैट केस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कोई भी प्लेट अर्थ हो गई तो एक्सटर्नल जो आउटर सरफेसेस होती हैं आउटर प्लेट्स की, उस पर चार्ज मेरा जीरो हो जाएगा। सो इन दिस केस ऑल्सो मैंने सेंटर को भी अगर अर्थ किया है तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो गया तो इस पर चार्ज कितना था मेरा, ऑलरेडी Q3 था, इस पर चार्ज कंडक्टर पे अगर वो आइसोलेटेड है इस पे मेंटेन रहेगा चार्ज, बट ये वाला अर्थ से कनेक्टेड हो गया तो इस पे अर्थ से चार्ज आ भी सकता है, और ये अर्थ में चार्ज जा भी सकता है, तो इस पे चार्ज चेंज हो जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले इस पे अगर Q2 था, अब इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी समथिंग Q2 डैश हो जाएगा, जो भी कनेक्टेड है अर्थ से, ठीक है। और जो बाकी हैं या आइसोलेटेड है, ये भी आइसोलेटेड है, ये भी कनेक्टेड नहीं है, इन पे चार्ज कॉन्स्टेंट रहेगा। अगर बिकॉज ऑफ दिस अर्थिंग यहाँ पे जीरो आ गया, सो इस पर तो चार्ज मेंटेन टोटल Q3 रहना है, तो यहाँ पे प्लस Q3 यहाँ पे आ जाएगा सारा, Q3 विल बी कमिंग हियर। सेम वे यहाँ पे जीरो हो गया, सो प्लस Q1 सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा, प्लस Q1 विल कम हियर, दिस प्लस Q1। यहाँ पे प्लस Q1 आ गया तो प्लस माइनस Q1 इधर आ जाएगा, और प्लस Q3 इधर आया तो माइनस Q3 इधर आ जाएगा, माइनस Q3 इधर आ जाएगा। अब इस पर जो नेट चार्ज कितना हो गया, माइनस Q1 प्लस Q3, दिस इज़ नाउ चार्ज। तो इनिशियली चार्ज कितना था इस पर Q2, अब फाइनल चार्ज कितना हो गया, माइनस Q1 प्लस Q3, तो इस पे चार्ज कितना फ्लो हो गया यहाँ से यहाँ पे Q2, तो Q2 गया, और उसके बाद ये भी माइनस हो गया चार्ज, तो ओवरऑल चार्ज विच इज फ्लोन फ्रॉम प्लेट टू अर्थ इज अगेन Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है, अगेन Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, राइट। ओके, दैट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग रिजल्ट, कि अगर कोई भी प्लेट मेरी कनेक्ट हो रही है तो जो भी टोटल चार्ज है मेरा, वट एवर इज़ माई टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 एंड Q3, दैट इज़ गोइंग डाउन। अगर मैं ये वाली भी प्लेट कनेक्ट कर रहा हूँ, इन दैट केस ऑल्सो द टोटल चार्ज इज मूविंग डाउन फ्रॉम प्लेट टू अर्थ।
ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मेरे पास एक चार्ज प्लस क्यू यहाँ पे रखा हुआ है और एक चार्ज माइनस क्यू यहाँ पे है। आई हैव टू फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकाल लिया। अगर मेरा ये प्लस क्यू चार्ज है, इससे एग्जिट कर रही होंगी सारी, ठीक है, और ये माइनस क्यू है तो इसमें एंटर कर रही होंगी यहाँ पे। सो ओवरऑल जो फ्लक्स हो रही होगी दैट विल बी टोटल हो रही होगी ना, इसकी फ्लक्स दोनों की एड अप हो रही होंगी। सो दैट इज़ द की कॉन्सेप्ट हेयर। सो बोथ द फ्लक्स विल बी गेटिंग एडिंग अप हेयर, ठीक है। यहाँ पे दोनों की फ्लक्स एड अप हो रही होंगी बिकॉज ऑफ दिस, ये वाली जो हो रही होगी, एंड बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी ऐसे ही जा रहा होगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है इन दिस डायरेक्शन, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, एंड दिस बोथ द फ्लक्स विल बी गेटिंग एडेड। तो अब इसके थ्रू फ्लक्स कितनी है मेरी, इफ दिस इज माई आर, दिस माई एल, एंड दिस एंगल इज माई, सपोज दिस माई फाई एंगल कोन का, और इससे मैं अपना ओमेगा निकाल सकता हूँ, और ओमेगा निकाल लिया तो आई कैन ईजिली कैलकुलेट कि इसके थ्रू मेरा कितनी फ्लक्स आती है प्लस क्यू चार्ज की वजह से। अगर मेरा सॉलिड एंगल 4 पाई है तो इसकी वजह से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आएगी। यूनिट सॉलिड एंगल की वजह से आएगी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं ये वाला एंगल निकाल लूँ, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस, सो ये वाला एंगल निकाल के इफ़ आई मल्टीप्लाइड बाई दिस फैक्टर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आई विल गेट के इसके थ्रू मेरी कितनी आएगी, और उसको मैं टोटल 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव डन। ओमेगा कितना आ गया, 2 पाई माइनस 1 माइनस कॉस फाई कितना हो गया, दिस एल डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, दिस एल डिवाइड बाय एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ना मेरा फाई कितना आ गया, फाई इज़ फॉर द चार्ज फॉर द कंप्लीट सॉलिड एंगल इज क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर द कंप्लीट सॉलिड एंगल इनटू ये मेरा पर्टिकुलर ये वाली सरफेस के थ्रू जितना सॉलिड एंगल बन रहा है वो उतना आ गया, इनटू 2 कर रहा हूँ बिकॉज माई दिस विल ऑल्सो बी एड अप, इसका भी मेरा फ्लक्स विल बी एडिंग अप। सो ओवरऑल फ्लक्स कितना आ गया मेरा, दिस विल बी माई वैल्यू ऑफ ओवरऑल फ्लक्स, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, विल सी अनदर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए बॉल ऑफ रेडियस आर, ये रेडियस आर की एक बॉल है, कैरिंग ए स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज, इसमें चार्ज स्फेरिकली सिमेट्रिक है, एंड द सराउंडिंग स्पेस इज फिल्ड विद अ चार्ज ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिस, ठीक है। ये मेरी पहले एक स्फेरिकल बॉल है और उसके बाद मेरा एक सम एरिया इज गिवन, ठीक है, सराउंडिंग स्पेस है, इट इज़ फिल्ड विद द चार्ज विद द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज़ वेरिंग लाइक दिस, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो इसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है इट इज़ विद द रेडियस इट इज़ डिक्रीजिंग, जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विल बी रिड्यूसिंग डाउन। तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, फिर धीरे धीरे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, वॉल्यूम सो चार्जेस आर रिड्यूसिंग, चार्ज डेंसिटी इज रिड्यूसिंग। R is the distance from the center of the ball. Find the ball's charge at which the magnitude of electric field strength vector is independent of the R outside the ball. मेरे को कोई एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है किसी पॉइंट पे, सपोज एक किसी पॉइंट पे आई हैव टू टेल द इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच माई इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द R आउटसाइड द बॉल। सो एट दिस पॉइंट पे कि जो मेरा Q सपोज इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस चार्ज की वजह से, और फिर सपोज इफ़ आई टेक इसका जो चार्ज होगा, जो बाहर वाले सरफेस का चार्ज है, इसकी ये जो मेरा इस वाले सरफेस के अंदर भी तो कुछ चार्ज होगा ना, इस वाले सरफेस की वजह से भी कुछ चार्ज आएगा, मेरा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। सो ये जो मेरा बाहर वाला ये वाला सरफेस है, इसकी वजह से जो भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट विल बी वेरिंग विद दिस आर, बिकॉज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑलरेडी वेरी कर रही है तो चार्ज भी वेरी करेगा, तो इवन ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिंग विद आर। तो मुझे फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है जहाँ पे ये आर के साथ वेरी ना कर रहा हो। सो दैट मीन्स विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर एट सर्टेन पॉइंट एंड फ्रॉम देयर विल ट्राई टू सी कि वहाँ पे आर की वैल्यू किस पॉइंट किस चार्ज के लिए एट व्हाट माई बॉल चार्ज, किस चार्ज के लिए मैं ये जो मेरी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है किस चार्ज के लिए, किस Q1 चार्ज के लिए ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ माई आर वैल्यू, दिस इंडिपेंडेंट ऑफ माई आर वैल्यू। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो Q निकालते हैं ये टोटल, पहले ऐसे करते हैं कि विल फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, विल टेक अ गॉसियन सरफेस, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, फ्रॉम देयर विल फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट एंड विल उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा इस पॉइंट पे विल बी बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, ये Q1 चार्ज इसकी वजह से, और जो इसके अंदर ये वाला चार्ज होगा, ये जो
ये वाला चार्ज होगा बाहर वाले की वजह से, ये रेडियली जो वेरी कर रहा है इसकी वजह से, इन दोनों की वजह से जो मेरा फ्लक्स होगा वो निकालते हैं, उससे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक इक्वेशन आ जाएगी एंड फ्रॉम देयर विल प्रोसीड। सो 0 से Q1 मेरा 0 से 1 तक मेरा सिमेट्रिक चार्ज है और 1 से 2 तक माय वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरिंग यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इट इज़ वेरिंग एज दिस। सो at E at, suppose we'll find out E at electric field at X where the charge, so X पे electric field will be because of this charge, इसकी वजह से, and because of the charge containing in this surface, ये surface में जितना भी चार्ज होगा इनकी वजह से मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा और उसकी वजह से विल फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फ्लक्स विल बी एट दिस पॉइंट, इसके थ्रू फ्लक्स कितना जा रहा होगा, विल बी इसका चार्ज Q1 प्लस ये सारा चार्ज, ये सारा ये वाले बाहर वाले सरफेस का चार्ज, सो Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा फ्लक्स आ गया, फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू यहाँ पे बिकॉज ऑफ बोथ द चार्जेस एट दिस पॉइंट माई इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E इंटू एरिया कितना हो गया इसका 4πx², सो दिस विल बी माई चार्ज, ठीक है। आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ चार्ज नाउ, सॉरी आई हैव गॉट द वैल्यू दिस E इंटू 4πx² आ गया, Q1 प्लस Q2 आ गया। अब हम यहाँ से बिकॉज माई Q2 इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, Q2 इज़ वेरिंग विद दिस, सो विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q2 हेयर, Q2 निकाल के वी पुट द वैल्यू Q2 हेयर। अब Q2 के लिए बिकॉज Q2 इज़ माई Q इज़ नथिंग बट माई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इट इज़ ऑल्सो, अगर मैं यहाँ तक का सरफेस एरिया ले रहा हूँ, सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज़ वेरिंग। विल फाइंड आउट, विल टेक, हम लोग ऐसा करते हैं, विल टेक अ एलिमेंटल शेल, ठीक है, एक शेल लेते हैं एंड विल इंटीग्रेट इट फ्रॉम यहाँ से इस वाले सरफेस से यहाँ तक का इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच का इंटीग्रेशन करेंगे, देयर वी कैन गेट द चार्ज स्टोर्ड इनसाइड दिस, ठीक है, इसके अंदर का चार्ज स्टोर आ जाएगा मेरे को, जो कि मुझे को Q2 चाहिए, Q2 मेरा यही है ना जो मेरा चार्ज इसके अंदर स्टोर हो रहा है। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सो dq इंटू बिकॉज दिस इज़ वेरिंग रेडियली, सो एट वन पॉइंट शेल लेते हैं, इस पर यहाँ पे कांस्टेंट होगा, सो एट अ डिस्टेंस r dr लेके विल फाइंड द वैल्यू ऑफ dq ऑन दिस, इस शेल पे dq निकालते हैं। सो dq आ गया रो इंटू ये इसका रेडियस, इसका सरफेस एरिया आ गया 4πr² इंटू वॉल्यूम निकालना है शेल का इंटू dr कर दिया। अब इसको मैंने इंटीग्रेट करना है r से लेकर x तक का, ठीक है, r से x तक इंटीग्रेट कर दिया, तो मेरा ओवरऑल q की वैल्यू आ गई, दिस इज़ माई वैल्यू ऑफ Q2 के इस रीजन में, ये जो मेरा रीजन है इसमें, दिस इज़ माई चार्ज Q2 स्टोर्ड, सो Q2 कम्स आउट टू बी 2πα x² माइनस r², दिस इज़ माई वैल्यू ऑफ Q2। नाउ आई पुट द वैल्यू ऑफ Q2 हेयर, यहाँ पे उठा के डाल दी, Q1 प्लस 2πα x² माइनस r², दिस। अब मेरे को बोल रखा है ये E की वैल्यू जो है ना, इट शुड नॉट वेरी विद r, दिस स्मॉल r के साथ वेरी नहीं करना चाहिए, सो हेयर स्मॉल r के साथ वेरी नहीं करना चाहिए, सो दैट मीन्स ये x के साथ वेरी नहीं करना चाहिए, हमारी टर्म्स में ये x के साथ वेरी नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पे हम देखें x की टर्म आ रही है, दिस x टर्म इज़ कमिंग इन, सो वी हैव टू सी के दिस x टर्म शुड बी कैंसिल। हम लोग इसको ओपन अप करते हैं, सो दिस यहाँ से अगर ये वाली टर्म देखें इतनी इतनी, इसमें x² से x² कैंसिल, ये 2 हो गया, ये मेरी टर्म आ गई α/2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस इसको दोनों को साथ में रख दिया 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 माइनस 2πα r²/x²। नाउ इन दिस टर्म के अगर ये वाली टर्म मेरी 0 हो जाए, ठीक है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ दिस माई x, ठीक है, तब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ x, अगर मेरी ये वाली टर्म 0 हो जाए, देन ओनली दिस केस इज़ पॉसिबल। सो अगर इसको 0 करना है दैट मीन्स Q1 शुड बी इक्वल टू दिस वैल्यू, अगर मेरी Q1 की वैल्यू इसके बराबर आ जाए देन आई कैन से दिस टर्म विल गेट कैंसिल और माई इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ r, small r is nothing but this x only, because we are considered this at certain point x, हमारे को वही बताना है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ दिस सर्टेन पॉइंट x जो भी यहाँ से डिस्टेंस होना चाहिए, सो इट विल बी इंडिपेंडेंट ओनली इन द केस when this term will get 0, if this term will get 0 we have got the value of q here, अब ये Q1 ये वैल्यू आ गई and the electric field will be α/2 epsilon naught, so that is what we have to find out के how high is this strength, this is what the strength, and find the Paul's charge should be Q1 is equal to this value, okay, so that is what we have to find out in this question। next question देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, when an uncharged conducting ball of radius r is placed in an external uniform electric field
अ सरफेस चार्ज डेंसिटी दिस मच इज इंड्यूस्ड ऑन द बॉल सरफेस, ठीक है. Now find the magnitude of resultant electric force acting on the induced charge of the same sign. Okay, so suppose my conducting, this is my uncharged conducting ball, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाली और जिसकी वजह से इस पे ये मेरी सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा ये मेरा सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई. तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी होती है. यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी और फिर धीरे धीरे डिक्रीज़ होती जाएगी और यहाँ पे सपोज यहाँ पे पॉजिटिव होगी बिकॉज कॉस थीटा इज जीरो हेयर, कॉस थीटा जीरो पे पॉजिटिव आ गई. तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गई है, पॉजिटिव धीरे धीरे डिक्रीज़ करता जाएगा और यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है. सेम वे यहाँ से पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव धीरे धीरे डिक्रीज़ करता जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगी इसकी चार्ज डेंसिटी. सो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी और धीरे धीरे डिक्रीज़ करके यहाँ पे हो जाएगी. सेम वे इस वाले रीजन में नेगेटिव होगी, नेगेटिव यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ से इंक्रीज़ करती जाएगी और यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी नेगेटिव, मैक्सिमम नेगेटिव यहाँ पे हो जाएगी, फिर यहाँ से डिक्रीज़ करती जाएगी नेगेटिव और यहाँ पे जीरो हो जाएगी. सो सेम वे मैक्सिमम नेगेटिव यहाँ पे होगी इस जगह और मैक्सिमम पॉजिटिव मेरी यहाँ पे होगी और इस डायरेक्शन में भी डिक्रीज़ कर रही होगी पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में भी पॉजिटिव डिक्रीज़ कर रही होगी, नेगेटिव भी इस डायरेक्शन में डिक्रीज़ कर रही होगी, नेगेटिव भी इस डायरेक्शन में डिक्रीज़ कर रही होगी. इस पॉइंट पे मेरी जीरो होगी. दैट इज़ व्हाट माई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन of this. तो मेरे को दे रखा है कि because of this external electric field this charge got induced, we have to find out the magnitude of resultant electric field induced by one charge. So one charge इसलिए दिया गया है because negative यहाँ पे आ गया and positive यहाँ पे आ गया, जिसकी वजह से net force इस पे ज़ीरो आ रही होगी, ठीक है. So that's why we have been asked कि surface charge density यही है but we are taking the plus charges only, ठीक है. plus charges same charges की वजह से we are taking it out. Now we have studied के we have already studied कि जब भी मेरे को we give some charge got induced into the conductor, it will go on to the surface of the conductor, ठीक है. अब उस particular portion पे if we see because of rest of the charges there is an outward pressure हमने पढ़ा था because of rest of the charges and that is developing a force into it. So outward pressure हमने कितना पढ़ा था df, अगर इस because right now my sigma is varying at each and every point. So इस पॉइंट पे प्रेशर अलग होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर अलग होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर अलग होगा because it is depending upon we have seen the pressure in our case we have seen df by ds is equal to sigma square by 2 epsilon naught. ये हमने ऑलरेडी देखा था लास्ट लेक्चर में. दिस माई प्रेशर एंड सिग्मा इज़ वेरिंग एट ईच एंड एवरी पॉइंट. यहाँ पे सिग्मा मैक्सिमम है, यहाँ पे वेरी करते करते धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, सिग्मा इज़ वेरिंग. सो वी कैन नॉट टेक अ क्यूमुलेटिव थिंग राइट अवे सिग्मा, बिकॉज वी हैव टू कंसिडर एक पर्टिकुलर पॉइंट लेना पड़ेगा, उस पॉइंट पे फोर्स निकालनी पड़ेगी, देन वी हैव टू इंटीग्रेट इट, ठीक है. तभी हम मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स का बिकॉज ऑफ सेम साइन, ठीक है. तभी हम निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी विल कंसिडर ए एलिमेंटल रिंग लेते हैं, ठीक है. इस रिंग पे माई चार्ज डेंसिटी विल बी कांस्टेंट, सिग्मा नॉट कॉस थीटा हो जाएगी बिकॉज दिस इज माई थीटा एट दिस पॉइंट, ठीक है. दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सो डी एफ इस पॉइंट पे दिस इज़ माई इस पे ये वाला, इस पे बिकॉज ऑफ दिस because of the outward pressure this will be the force here. इस force को will break it down in two direction. The force will be perpendicular ना, we have already seen it के conductor के surface पे perpendicular होती है, parallel होगी तो that is going to stretch and it is going to create disbalance in the electrostatic equilibrium. We don't want that. यहाँ पे force ही आ गई, एक ही आ गई, एक ये direction आ गई. जो ये वाली direction है that will got cancelled up here इसकी वजह से. तो नेट जो आएगी दैट विल बी कमिंग इन दिस डायरेक्शन, एफ कॉस थीटा आएगी नेट, ठीक है. नेट विल बी कमिंग इन दिस डायरेक्शन. सो नाउ माय प्रेशर जो हमने देखा था दैट विल बी सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. इस पॉइंट पे प्रेशर मेरा ये आ गया, ठीक है. से दिस पॉइंट पे प्रेशर मेरा ये आ गया और दिस प्रेशर आई कैन राइट इट डाउन डी एफ बाई डी एस. अब मैंने क्या किया यहाँ पे डी एस को मैं इधर ले गया. सो डी एफ मेरा कितना आ गया, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एस. And this df is my this, and I have to take the cos component, so I'll take the df cos theta component. It is my sigma square 2 epsilon naught ds cos theta. अब now I'll put the value of ds की value रखते हैं. So ds this surface कितना है मेरा, so it is my r d theta. So sorry, this is my d theta, ये d theta हो गया. तो ये वाला पोर्शन आ गया मेरा r d theta और ये हो गया मेरा दिस इज़ माई थीटा. सो दिस विल बी माई आर साइन थीटा. तो इसका जो 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, सो दैट विल बी माई स्मॉल डी एस. सो स्मॉल डी एस आ गया मेरा दिस, ठीक है. स्मॉल डी एस कम्स आउट टू बी 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा. और
ऑलरेडी वी आर हैविंग सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हमने इस पॉइंट पे रख दी बिकॉज एट एंगल थीटा वी आर टेकिंग, सो सिग्मा नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये ds की वैल्यू डाल दी हमने, एंड कॉस थीटा बिकॉज वी आर टेकिंग बिकॉज ऑफ सिमेट्री यहाँ पे साइन थीटा वाले कंपोनेंट दोनों साइड के कैंसिल हो जाएंगे, ओनली दिस विल बी द आउटवर्ड प्रेशर, इट विल बी हियर, सो इट पे प्रेशर ऐसे आ रहा होगा, बट बिकॉज ऑफ दिस पोर्शन ऑल्सो, ये वाला पोर्शन, ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट विल गेट कैंसिल. नाउ वी पुट द वैल्यू एंड वी आर नाउ इंटीग्रेट द थीटा फ्रॉम 0 से, यहाँ से 0 से π/2 पे, ठीक है, 0 से π/2 इंटीग्रेट किया मैंने, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 to π/2. यहाँ पे मेरा इट इज़ माई साइन, यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा अंदर, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, बाकी सारी टर्म्स बाहर आ जाएंगी. नाउ आई पुट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एज टी, ठीक है, कॉस थीटा को टी रख दो, देन योर कॉस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा डी थीटा, कॉस थीटा को टी रखा माइनस साइन, सो दिस विल बी योर माइनस साइन थीटा डी थीटा विल बी योर डी टी, सो ये वाली टर्म आ जाएगी मेरी टी क्यूब डी टी माइनस टी क्यूब डी टी. नाउ आई हैव टू डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट इट इज़ क्वाइट ईजी, टी 4/4 कर दो एंड यू पुट द वैल्यू अगेन बैक साइन थीटा की जगह कॉस थीटा डाल दो एंड यू पुट द वैल्यू 0 से π/2, ठीक है, यू पुट द वैल्यू 0 से π/2 एंड फाइनली यू गॉट द आंसर एज force, outward force will be sigma naught square pi r square by 4 epsilon naught, right? So that is what you are going to get it. Okay, so that was there in the question. So basically the reason for doing it with integration is my surface charge density is varying and my pressure is actually depending on the charge density, ठीक है. अगर charge density vary कर रही है, so we have to take a particular point, और वो vary कैसे कर रही है, because of the theta only, so it is better to take the ring पूरे स्फेयर पे, where the theta will be, ये हर जगह है मेरा, theta will be same for each and every part of the ring, ठीक है, so theta will be same. So from there you can easily calculate sigma, you can easily calculate you can put the value of sigma there, because sigma will be at that point will be at the theta sigma naught cos theta, ठीक है. और देन ds ले लिया आपने, ds यू कैन टेक आउट लाइक दिस एंड यू जस्ट इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन में हमने सब्सटीट्यूशन लगाया, cos थीटा को वी जस्ट पुट इट t एंड वी इंटीग्रेटेड, राइट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी आर डन विद आवर दिस पोर्शन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है. सो विल टेक अ क्विक रिव्यू एंड विल गिव यू अ ब्रीफ नाउ कि अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे. सो ब्रीफ क्विक रिव्यू ले लेते हैं. कॉन्सेप्ट्स आज हमने देखे, सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट देखा. सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज़ होता है, जब भी हमारा कोई व्हेनेवर वी आर हैविंग द बेसिकली रेडियल डायरेक्शन में फील्ड है या रेडियल डायरेक्शन में मेरा फ्लो है और सम पॉइंट चार्ज मेरा फ्लो हो रहा है, इन दैट केस माई सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट इज़ क्वाइट हेल्पफुल इन फाइंडिंग आउट द फ्लक्स, ठीक है. सो हेयर ऑल्सो फॉर द पॉइंट चार्जेस, अगर मेरा पॉइंट चार्जेस के थ्रू द रेडियल फील्ड एग्जिट करता है ना, रेडियली फील्ड फ्लोट कर रहा होता है इन द स्पेस, सो in for that point charges we'll get a very good and easy calculation through the solid angle. तो हमने देखा था, we'll see that concept. हमने फिर relationship देखी solid angle और half cone के बीच में. So if this is my solid angle, ये 3D angle है, तो इसका जो half cone हो गया, this is also making a cone also ना, so इसका जो half angle हो गया, suppose this phi, so we have seen the relationship between this solid angle and this phi, ठीक है. And we have seen कि what is the relationship between solid angle and the surface it is making and the radius, ठीक है. We have seen if the surface is not at a if the surface is not aligning with the axis, so in that case we have to take the projection of the surface ds cos theta and then we'll find out the value of our solid angle. Now this is what the relationship we have got, the solid angle and half angle. So अगर मैं यहाँ पे phi की जगह 90 डिग्री कर दूँ, here if we put the value, ये मेरा surface है, ये मेरा sphere है, for this is my cone, और इस cone के लिए we have seen the value of our solid angle and our half angle. अगर मैं इसको if I increase this half angle to pi/2 इसको increase कर दिया, then I'll be having this surface, और ये नीचे वाला मेरा open up होगा, ठीक है. So this is my half hemisphere with the bottom open up. So if I'm having the charge here, अगर मेरा charge यहाँ पे ये है, so तो इस surface के through my जो मेरा सॉलिड एंगल बन रहा होगा ये वाले सरफेस पे, माई सॉलिड एंगल विल बी 2π, ठीक है. माई सॉलिड एंगल विल बी 2π. सेम वे फॉर दिस सरफेस ऑल्सो, ये वाले सरफेस के लिए अगर ये नीचे से ओपन है, सो फॉर दिस सरफेस ऑल्सो माई सॉलिड एंगल विल बी 2π ओनली, एंड फॉर दिस सरफेस ऑल्सो माई सॉलिड एंगल विल बी 2π. अगर मेरा क्लोज सरफेस है पूरा का पूरा, अगर मैं इसको इफ़ आई इंक्रीज दिस phi to
2 pi, sorry pi, then in that case it will make a complete सेमिस्फेयर क्लोज सरफेस बना लेगा एंड इन द क्लोज सरफेस आई एम हैविंग द सॉलिड एंगल एज 4 पाई. ठीक है, फॉर एनी क्लोज सरफेस आई एम हैविंग द एंगल एज 4 पाई. अगर ये मेरा ऐसे क्लोज सरफेस है और यहाँ पे मेरा पॉइंट है, सो नाउ आई एम हैविंग द सॉलिड एंगल एज 4 पाई. ठीक है, सो विद दिस सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट वी हैव कैलकुलेटेड द फ्लक्स क्रॉसिंग द डिस्क विद द हेल्प ऑफ सॉलिड एंगल. हमने क्या किया, इस क्यू की वजह से जो ओवरऑल पूरे स्पेस में स्प्रेड कर रहा होगा ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज़ बिकॉज ऑफ 4 पाई सॉलिड एंगल. नाउ अगर मैं ये वाला सॉलिड एंगल निकाल लूँ तो इसके थ्रू कितना आएगा, आई कैन ईजिली गेट द वैल्यू ऑफ माई फ्लक्स थ्रू द डिस्क. सेम वे वी हैव सीन कि अगर हमारे को ऐसे इरेगुलर शेप दे रखी है तो मेरे को डिस्क के थ्रू निकालना है एंड आई कैन माइनस दैट विद माई ओवरऑल 4 पाई के थ्रू जितना निकल रहा है एंड आई गेट द लेटरल एरिया के थ्रू कितना फ्लक्स जा रहा है. एंड देन वी हैव सीन सम क्वेश्चंस ऑन अर्थिंग ऑफ, देन वी हैव सीन द क्वेश्चंस. यहाँ पे एक क्वेश्चन देखा था हमने, देन वी हैव सीन इस क्वेश्चन में बेसिकली हमारा था कि हाउ द नेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस द फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस इज गिविंग मी दीज फील्ड्स एंड विद दीज फील्ड्स वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स. सो दैट वी हैव सीन इट हेयर. इन दिस वी हैव सीन के अर्थिंग का कॉन्सेप्ट कि इफ द अर्थिंग इज देयर देन इन दैट केस व्हाट विल बी माई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. In this case we have seen the flux flowing through this disk. This case we have seen कि ये इसके अंदर मेरा यूनिफॉर्म चार्ज है एंड ये जो मेरा आउटर सरफेस है इसके बाहर वाला, इसके अंदर मेरा नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि एक ऐसा पॉइंट कि जिसकी वजह से जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ माई दिस आर वैल्यू. सो दैट वी हैव अप्लाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉस लॉ here. Then in this last question we have seen the electrostatic pressure concept कि whenever we are having the induced charges, तो charges क्या होते हैं, they because they spread it on the surface, और surface पे उन charge for that small area the charge because there is a outward pressure because of the rest of the charges. So that outward pressure we have already calculated in the last lecture, that is sigma square by 2 epsilon naught. So here we have to find out the force onto it. Finding the force onto it, we have calculated we have taken a small ring onto it because my surface charge density is varying. So on that small ring we have calculated the value of force and then we have integrated to get the value of the overall sphere. Right, so this is all for today. हमारा next lecture में we'll see from the next lecture we are going to see the concept of potential, electric potential, इंट्रैक्शन एनर्जी देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे. पोटेंशियल एनर्जी इज़ रिलेटेड विद कंजर्वेटिव फोर्सेस. तो हमने ऑलरेडी हमने वर्क एनर्जी पावर वाला जो लेक्चर देखा था, तो इन दैट लेक्चर वी हैव इन डेप्थ अंडरस्टैंड वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट ऑफ conservative forces and non-conservative forces, and electrostatic force is my conservative force. So we can say कि the potential concept is related with the conservative forces. So electrostatic potential energy will be there. So we'll see the electrostatic potential energy. और फिर एक concept self energy का होता है, that is we are going to see. So interaction energy and self energy. So this is all is pending. Potential और potential से related जितने भी phenomena होंगे, that is what we are going to see in the coming part of our chapters. ठीक है, ये हो जाएगा. Then next will be our I think next will be a quite important topic. फिर हम capacitors देखेंगे. ठीक है, so that's all for today. We have done with our second part of our this class 12th series. So इसका हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ देख लिया. नेक्स्ट में अब हम पोटेंशियल और उससे रिलेटेड फिनोमिनास देखेंगे. राइट, सो ऑल राइट, थैंक यू.